ಈ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಭರತೇಶ್ವರ ವೈಭವವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಾಹುಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಭರತೇಶ. ನಾವು ಹೇಳೋದು, ಜೈನರು ಹೇಳೋದು, ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದದೇ ಆ ಭರತನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಬೇಡ. ಅಂತೂ ಭರತೇಶ್ವರ ಅವನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅವನು ನಿತ್ಯ ಆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಟು ಮುನಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮುನಿಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮುನಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬರಲಿಲ್ಲ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆ ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ರಿಚ್, ಬಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಫುಡ್ ಟು ಒನ್ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇವನು ಬೇಜಾರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಚಾರನ ಮುನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಭರತೇಶ್ವರ ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಮಹಾರಾಜ ಕಾದು ಮುನಿಗಳು ಬಂದರು. ಮುನಿಗಳು ಅರಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಣಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರು. ಮುನಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮದುವೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಏನು ಮದುವೆ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಬರೋದು ದೊಡ್ಡದೆ, ಇವ್ರು ಸೀರೆ ತೊಡೋದು ದೊಡ್ಡದೆ, ಇವ್ರು ಬಂಗಾರ ತೊಡೋದು ದೊಡ್ಡದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕುಣಿಯೋದು ಕಮ್ಮಿನೇ, ತೋರಣ ಕಮ್ಮಿನೇ, ಹೂಗೆ ಕಮ್ಮಿನೇ, ತಾವು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದೇ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಅದರಿಂದ ಊರಿಗೂರ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನೇ ಸ್ವತಃ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಹಾರಾಜ. ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆದು ಸಂದರ್ಭ, ಇನ್ನು ಅವರು ಹೊರಡೋ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಬಿಸಿಲು 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಭರತೇಶ್ವರ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ. ಬೇಡ ಮಾರಾಯ, ನೀನು ಹೋಗು, ನೀನು ಮಹಾರಾಜ, ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಣಿಯವರು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಡಿಗೆಯವರು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗು ಅಂದರೆ, ಬೇಡ ಮುನಿಗಳೇ, ನಾನು ಇನ್ನೂ 10 ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ 12 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಇವನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಆದಿನಾಥನ ಆಣೆ, ನೀನು ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಜ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. SDM ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಕೋಲಾರ್ ಅವರು SDM ಸೊಸೈಟಿಯ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಜೀವಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಹ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ. He is not talking about the blood revolution, but an internal revolution. To improve the society, we keep looking outside. We want a leader to come. We want someone else to bring change in this world. But it's not possible unless you change first. I am sure all of us at some time had some questions. We exist in this world for a very short time. And in this time, we explore but a small part of this world. But human beings are very curious. We wonder, we seek answers. Living in this vast world, and by turn which is cruel and sometimes comforting, we keep wondering what is up there in the vast space. But we forget to look inside, which is again a very vast space. There are questions comes up saying that how this world came into existence. There's question happens when the time started. The question comes, what is reality and what is truth? You may wonder, who asked this question?
सभा के प्रारंभ में हमारे पूर्व वक्ता डॉक्टर निरंजन जी कह रहे थे दिगंबरत्व क्या है। मैं कहना चाहूँगा, मैं दिगंबर बना हूँ। लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज आप दिगंबर क्यों बने। वास्तव में दिगंबर कौन बनता है? वास्तव में मैं दिगंबर बना हूँ, लेकिन मैं दिगंबर इसलिए बना हूँ कि मैं आडंबर से डर करके दिगंबर बना हूँ। संसार में सर्वत्र जहाँ देखो वहाँ आडंबर ही आडंबर देखने में मिल रहा है। जहाँ जाता है वहाँ पर आडंबर ही आडंबर है। लेकिन जब तक हम दिगंबर नहीं बनेंगे तब तक आडंबर से बच नहीं पाएंगे। समझ करके मैं दिगंबर बना हूँ। आडंबर से बचने के लिए दिगंबर बना हूँ। दिगंबर बनने में कोई आडंबर नहीं चल सकता है। और एक बात तो हूँ, अध्यात्म और कुछ नहीं है। हे मनुष्यों, आप अपने अहंकार का त्याग करो, वही अध्यात्म है। जितने जितने अहंकार को त्याग करते चले जाते हैं उतने उतने तुम अध्यात्म में डूबते चले जाते हैं। पुरुष दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य पुरुष, एक महापुरुष। भगवान महावीर महापुरुषों में आते हैं, प्रभु रामचंद्र भी महापुरुषों में आते हैं, हमारे पांडव महापुरुषों में आते हैं। सामान्य पुरुष और महापुरुष पुरुषों के दो भेद होते हैं। लेकिन खुशी और आश्चर्य की बात है, महापुरुषों का जीवन जन जन के जीवन के निर्माण के लिए होता है। आज हमारे धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े और उनका परिवार और सबको देख करके ऐसा लगता है ये भी महापुरुषों के कोटि में आते हैं। उनके साथ देने वाले भी आज न कल महापुरुषों के कोटि में अवश्य आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि इनका वैभव विलासता के लिए नहीं, जन जन के जीवन निर्माण के लिए होता है। इनके पास वैभव है, लेकिन वह वैभव विलासता के लिए नहीं, प्रत्येक प्राणी मात्र के व्यक्ति व्यक्ति के जीवन निर्माण के लिए। हर कदम, हर सोच, हर काम, हर कर्तव्य सामान्य पुरुष और महापुरुष दोनों एक साथ करते हैं, एक ही काम करते हैं, एक स्थान पर रहते हैं। उनका एक प्रदेश अलग नहीं रहता है, उनका एक देश अलग नहीं रहता, उनका क्षेत्र अलग नहीं रहता है। आपके साथ रह करके भी महापुरुष अपने महापुरुषत्व को बना के रखते हैं। सामान्य काम करके भी महान काम करके दिखाते हैं। महापुरुषों का जीवन स्वयं के लिए नहीं, सबके लिए होता है। उनका जीवन सबके लिए समर्पित रहता है। महापुरुषों का स्वयं के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं। महापुरुषों का तन, महापुरुषों का धन, महापुरुषों का एक एक दिन, एक एक क्षण चेतन और जीवन निर्माण के लिए होता है। और सामान्य पुरुषों का चेतन और जीवन सिर्फ तन और धन के लिए होता है। यही दोनों में अंतर है। थोड़ा सा हम सोचे, महापुरुषों के कोटि में आने के लिए तुम्हें खूब पैसा कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम भी महापुरुषों के कोटि में आ सकते हैं। हम जो कर रहे हैं, जहाँ खड़े हैं वहाँ पर रह कर के भी हम अपने जीवन निर्माण कर सकते हैं, सबके जीवन का निर्माण कर सकते हैं, महापुरुषों के कोटि में आ सकते हैं। किसी भी काम को छोटे काम के रूप में नहीं लेना, ये देखना मैं छोटा हूँ ये कहना है बंद कर देना, छोटा काम है मेरा, छोटा काम है कहना बंद कर देना, एक बहुत छोटा सा काम भी बहुत बड़े बना सकता है। आप लोगों के लिए याद रखना, दिल से करना, मन से करना। छोटे काम करके भी आप महान बन सकते हो। महान व्यक्तियों ने बड़े बड़े काम नहीं किया, छोटे छोटे काम को मन से किया, इसलिए महान बन गए। जब तक संसार है, शरीर और आत्मा ये दो चीजें हैं, तन और चेतन ये दो चीजें हैं। इन दोनों का संबंध अनादिकालीन है। कर्मों की वजह से कहिएगा, अपना द्रव्य कर्म, भाव कर्म, तो नो कर्म की वजह से कहिएगा। मैं ये कहूंगा आप लोगों के लिए, जब तक संसार रहेगा तब तक दोनों का संबंध रहेगा।
जब तक दोनों का संबंध रहेगा तब तक संसार रहेगा। किंतु इस तन में रह करके भी हम चेतन को समझ सकते हैं, अपने अंदर की चैतन्यता को जगा सकते हैं। और महापुरुष तन को गौण करके भी चेतन को महत्व देता है, लेकिन सामान्य पुरुष चेतन और जीवन को गौण करके तन और धन को महत्व देता है। दोनों में अंतर है। आचार्य ने कहा जहां शरीर है वहां रोग है। एक अंगुल में 96 रोग बता दिया गया है, पूरे शरीर की कथन तो दूर की बात है। लेकिन शारीरिक व्याधियों को महापुरुषों ने अपने चेतन शक्ति को बढ़ा करके शारीरिक व्याधियों को, अस्वस्थता को भी ठीक कर लेते हैं। तन का प्रभाव चेतन पर, चेतन का प्रभाव तन पर पड़ता है। और अस्वस्थता के अनेक कारण हैं। आज अनेक पेटियां हैं, सभी लोग अपने अपने तरफ से अपने ढंग से जन सेवा कर रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ दिला रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए कि वास्तव में कभी कभी हमारे मन में विकृति आने के कारण तन में विकृति आती है। सिर्फ तन की विकृति को दूर करने का प्रयास न करके तन की विकृति में आने का कारण को भी समझने का प्रयास अवश्य करें। मन की विकृति दूर हो जाएगी तो तन की विकृति दूर हो सकती है। मैंने एक दोहा लिखा था, तन का रोग न रोग है, मन का रोग ही रोग। तन मन के दो रोग से भव भ्रमण का योग। यदि तन में रोग नहीं है और मन में रोग हो जाता है, मेरे को यहाँ पर बीमारी है, मेरे को तकलीफ हो रही है, तो समझ लेना जहां बीमारी नहीं वहां पर बीमारी हो जाएगी। लेकिन मन में यदि रोग नहीं होगा तो निश्चित रूप से तन में रोग हुआ है तो भी वह भी ठीक हो जाएगी। लोगों ने, मेरे के डॉक्टरों ने अनेक बार कहा कि ये 4 दिन का मेहमान है। मैंने डॉक्टरों का कह दिया चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपकी समाधि करा करके मैं समाधि कर लूंगा। इच्छा शक्ति को बना के रखे। तन और मन का प्रभाव है, लेकिन अस्वस्थता का मूल कारण आज हम बीमारी को ठीक करना चाहते हैं लेकिन कारणों को हटाना नहीं चाहते हैं। यदि अग्नि यदि नीचे लग जाती है तो पानी गर्म हो जाते हैं, लेकिन आप पानी को ठंडा करना चाहते हैं तो अग्नि को हटाने की पहले आवश्यकता है, पहले शर्त है। पानी के अग्नि को हटाए बिना कि उसको शीतल करना संभव नहीं है। ऊपर से कितने भी कुछ करते रहे तो वह ठीक नहीं हो सकता है। मैं कहूँगा आप लोगों के लिए, वास्तव में शरीर को ठीक करने के लिए मन को ठीक करिएगा, तन को ठीक करने के लिए मन को ठीक करिएगा, अपने जीवन को ठीक करिएगा, आपका तन ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारी दृष्टि उस ओर नहीं है। मैं कहना चाहूँगा एक छोटी सी बात। एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, बीमार पड़ने के कारण अनेक प्रकार के पेट में व्याधियाँ हो जाती है। पेट में दर्द होने के कारण वो तड़पने लगता है और तड़पते तड़पते इतने दिन निकल जाता है। अनेक डॉक्टरों को दिखाया जाता है, अनेक प्रकार के काम किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ठीक नहीं होता है। और ठीक नहीं होने के कारण सब डॉक्टरों को दिखाया जाता है, लेकिन अनेक प्रकार के इलाज करने के बाद उसमें ठीक नहीं हो पाता है। किसी ने सलाह दिया तुम चिंता मत करो, एक बॉम्बे में बहुत बड़े डॉक्टर आए, फॉरेन रिटर्न है, और वहाँ से कोई भी पेशेंट ठीक हुए बिना लौट करके नहीं आया, वहाँ पर जा करके दिखा दो। तब वह सारे लोग सारी व्यवस्था बना करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पहुँच करके डॉक्टर साहब को दिखा दिया जाता है और चेकअप किया जाता है। कोई ये नहीं है, कोई परेशानियाँ हैं, सारे रिपोर्ट नॉर्मल है। डॉक्टर परेशान हो जाता है। डॉक्टर दुखी इसलिए था कि पेशेंट को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए नहीं, मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा इसलिए। अभी तक का मेरा रिकॉर्ड है, यहाँ से कोई भी पेशेंट ठीक हुई नहीं गया है, इसकी चिंता उनको थी। तो उन्होंने क्या किया,
रात में उनको नींद नहीं आती है, बेचैन हो जाते हैं और चिंतन कर लेते हैं, और सुबह उठ करके पेशेंट के पास बैठ करके 1 घंटे 2 घंटे बात कर लेते हैं। बात करते करते अनेक प्रकार की बातें पूछा, और पूछते पूछते उनने पूछा, तुम्हारे पेट में दर्द कब से हो रहा है? डॉक्टर साहब ने सोचा विचार किया, इसको कोई ना कोई मार्ग निकालना होगा, खोजना होगा। तब उन्होंने पूछते पूछते पेशेंट से पूछ, बेटा तुम्हारे पेट में दर्द कब से हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या तुम्हारे दिवाली में ज्यादा खाया था क्या, मिठाई ज्यादा खाई थी क्या, क्या क्या किया था, आदि आदि। और लास्ट में पूछा तुम्हारे पेट में दर्द कब से हो रहा है? तब पेशेंट ने धीरे से कहा, जब से मेरा तो 5 मंजिल का मकान है, मेरे सामने वालों का 10 मंजिल का मकान जब से बना तब से मेरे पेट में दर्द है।